Yeah, so hello everyone, welcome back. So today we are going to continue our chapter Optics Part 3 from the subject Physics of Standard FYJC Science. And today we are going to cover the major topics which are related to the refraction at spherical surfaces. Okay, so let's look at it. So before that, what we have seen in the last lecture, okay, हमने last lecture में क्या देखा था? We have seen the reflection through types of mirrors. Okay, so mirror is nothing but that kind of, I can say, the apparatus in which one side is sided, one side is reflecting, other side is shaded, right? So in that case, I will get, based on the shape, I will get various types of mirrors, like a plane mirror, then spherical mirror. Spherical mirror में दो type आते हैं based on whether the rays are converging or whether the rays are diverging, right? अगर रे कन्वर्ज हो रहे सो दैट विल बी माय कॉनकेव, अगर रेज मेरे डाइवर्ज हो रहे so that will be my convex, right? So based on that we have seen the types of mirror, right? But now also we have seen the, what do you mean by the refraction? Okay, because reflection हमारे daily life में हम बहुत देखते हैं, right? But the moment we are coming across the refraction, so refraction is something different. ओके, द रिफ्रैक्शन का मेन कॉज मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था, इट्स नथिंग बट ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट. ओके, बिकॉज इन एयर लाइट का वेलोसिटी है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट द मोमेंट यू आर गोइंग इनसाइड another medium, obviously the light velocity will get changed, and the moment light velocity is getting changed, obviously that will affect on the path what which the ray is going to follow, right? If there is any change in the path, obviously the path will get diverted. Okay, and this is why, because of, and this is the phenomenon which we got in optics, we are calling it as a refraction. Okay, so refraction is nothing but when the ray of light deviates from its actual path when it is going into another medium, and the reason because of change in the velocity, because एयर में वेलोसिटी अलग है लाइट का, एंड in any medium, other medium other than air, the velocity of light is different. Okay, and because of that there is a deviation, and this phenomenon we called it as a refraction, और इनका जो angle of refraction या angle of incidence होता है, that is given by the scientist called as a Snell. So Snell's law is nothing but sin I divided by sin r will be equal to refractive index. Okay, then today we are going to see the spherical, I can say the spherical objects like two sphere if I'll fuse. Okay, उनका अगर मैं यूनियन निकालूं तो मुझे वहां पे क्या मिलेगा, एक दो स्फेरिकल का कंबाइंड एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा. वी कॉल्ड इट एज ए लेंसेस. ओके, सो लेंसेस एक अलग टाइप के होते हैं विच आर गिविंग अस और विच आर हेल्पिंग अस टू मैग्नीफाई, और मैं बोल सकता हूँ टू minimize the object. So there are various applications of those lenses, right? But सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये lenses कैसे बनते हैं and how many types of lenses are available. Okay, so these are types of lenses. Okay, so आपको यहाँ पे दिख रहा है कि intersection, or I can say union of two spherical I can say sphere of same refractive index, okay, can make a convex lens. So convex lens में कैसे होता है, उसका जो मिडल पार्ट होता है वो थोड़ा सा आई कैन से बिगर होता है, और जैसे जैसे वो एंड में जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा कॉन्केटिनेट होते जाता है. ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट एज अ कॉन्वेक्स लेंस. Okay, so this is nothing but as internal cross section of two spheres. So this is how convex lens created. Then this is exactly ulta, जहां पे concave lens came into the picture. Okay, so concave lens में क्या होता है, उनका जो end होता है वो ज्यादा I can say thick होता है as compared to middle one. Okay, so this is the I can say representation of my concave lens. Then यहाँ पे plano convex, मतलब उसका एक side I can say convex होता है, दूसरा साइड नहीं होता है, right? So this is we call it as a plano convex lens. So plano convex lens में one side is straight or plane and other side is curved, right? So this is, I can say ये convex lens का half part ऐसे दिखता है. Okay,
Yeah, so this is nothing but plano convex lenses. Okay, then we have a plano concave lens. Okay, so plano concave में क्या होगा कि उसका एक साइड concave होगा and other side will be plane. So this we call it as a plano concave lens. Okay, and this is plano convex lens. तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो साइड मेरा पैरेलल है, ओके, और प्लेन है, उसके अपोजिट साइड में कौन सा कर्वेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर इट इज अ कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मतलब इनसाइड से वो फुल गया होता है, राइट? सो इट्स लाइक बल्की फ्रॉम द मिडल, एंड कॉन्केव इज लाइक नो आई कैन से कॉन्ट्रैक्टिंग इन द मिडल. ओके, सो ऐसे याद रखो इसको. ओके, सो दिस इज द प्लेनो, मतलब वन साइड इज प्लेन, इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज वन साइड इज प्लेन बट इट इज लाइक अ कॉन्केव, एंड इट इज अ प्लेनो कॉन्केव लेंस. अगेन देर इज अ चेंज कि उसका एक साइड प्लेन नहीं है बट बोथ आर आई कैन से द मतलब मूविंग आउटसाइड ओनली, राइट? इन दिस केस उसका एक साइड मुझे कॉन्केव लगेगा और दूसरा साइड मुझे क्या लगेगा, कॉन्वेक्स लगेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सो पहले ये कॉन्केव देन कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस. ओके, सो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. आपको मेजरली ये दोनों पे ही क्वेश्चंस आएंगे, बट इन केस ऑफ जेई, यस, यू आर गोइंग टू, एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर रखना कि ये पर्टिकुलर जो आई कैन से वो घुमा के भी थोड़ा दे सकते हैं, बट योर जॉब इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आप इजीली इसको आई कैन से क्रैक कर सकते हो. ओके, yeah, so these are the types of lenses and we are going to see the major part which is related to this convex lens. Okay, इसमें image formation कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, so everything we are going to see. और बहुत interesting है. Okay, yeah, so here a lens is said to be a convex if it is a thicker in the middle and narrowing towards the periphery and has a positive focal length. तो ये जो है that is nothing but my convex lens. ये उसका मतलब है. Then second is a lens is concave. It is thicker at the periphery. Periphery मतलब उसके जो ends है उनको periphery बोलते हैं. And narrow down towards the center. So आप यहाँ पे देख सकते हो it is nothing but narrowing towards the center and has negative focal length. तो convex lens के पास होता है positive focal length and negative concave lens के पास होता है negative focal length. Okay, according to sine Cartesian rules. Okay. And there is one more thing which is very important to distinguish this convex lens from this concave lens is nothing but the whether the beam of light is converging or whether the beam of light is diverging. Okay, so जब भी आप एक convex lens okay के ऊपर आई कैन से रेज ऑफ लाइट फॉल करते हो, तो वो क्या करता है, ये सारे लाइट को एक सेंटर मतलब उसके फोकस तक क्या करता है, उसको आई कैन से कन्वर्ज करके एक सेंटर पॉइंट में लाने की कोशिश करता है. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन इन योर चाइल्डहुड आपने मैग्नीफाइंग ग्लास से आप क्या करते थे, यू यूज टू आई कैन से जो पेपर होता था उसको आप जलाने की कोशिश करते थे, राइट? दिस इज वाई बिकॉज द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम सन, ओके, विच आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर वो सन रेज से आ रहे, ओके सॉरी, रेज अगर सन से आ रहे हैं और मैं उस पर उसको फॉल कर रहा हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास पे, तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, सारे रेज को कन्वर्ज करके मतलब सारे रेज को मिला के फोकल पॉइंट पे, फोकल पॉइंट मतलब जहाँ पे वो सारे आई कैन से रेज फोकस हो जाएंगे, वो पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, सारे रेज को मिला रहा है. एंड दैट इज द मेन रीजन ऑल द रेज आर गेटिंग कन्वर्ज्ड एंड कमिंग एट फोकल पॉइंट. और अगर फोकल पॉइंट पे मैंने किसी कागज का टुकड़ा या नॉर्मली अगर मैंने स्किन को एक्सपोज किया तो इमिडिएटली आई विल स्टार्ट नो बर्निंग सेंसेशन मुझे आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इफ आई विल कीप इट फॉर 4 or 5 times more then again it will start burning, right? So that's why they are saying कि it is nothing but having the converge. Okay, और इसमें क्या होता है, डाइवर्ज होता है, राइट? सो डाइवर्ज का मतलब स्कैटर्ड होना, कन्वर्ज का मतलब एक साथ आना. ठीक है, सो concave lens में always we see diverging of incident beam, and in case of convex lens we always see converging of incident beam.
कन्वर्ज मतलब पास में आना, डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से अवे जाना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द लेंसेज। देन आई हैव रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। अभी मुझे क्या करना है, स्टडी करना है, ओके। तो स्टडी किसका करना है कि पहले हमने देखा कि अगर मेरा जो अनदर मीडियम है अगर वो प्लेन होगा तो उसमें मुझे फाइंड आउट करने मिलता था नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सारी चीजें, राइट। एंड यूजिंग स्नेल्स लॉ मैंने फाइंड आउट भी कर दिया था, ठीक है। But when the refraction is happening in a spherical surfaces, like half side of my, I can say lens, okay. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट हाफ साइड ऑफ द लेंस, ये पूरा लेंस नहीं है, ओके। तो हाफ साइड ऑफ लेंस पे अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है एंड आई एम लुकिंग एट फ्रॉम दिस साइड, तो मुझे जस्ट फाइंड आउट करना है कि ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मिरर इमेज बनेगी, राइट। नाउ वेन एवर यू आर लुकिंग और स्टडिंग द ऑप्टिक्स, सो दो तीन चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली कि ऑप्टिक्स हमेशा काम करता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज पे, ओके। बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट देयर इनपुट एंड इमेज इज नथिंग बट देयर आउटपुट। जैसे इलेक्ट्रिकल में होता है कि आप सोर्स देते हो पॉजिटिव नेगेटिव और उसके बेसिस पे मेरा बल्ब ग्लो होता है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट द इंडिकेशन ऑफ इनपुट वर्सेस आउटपुट। सिमिलरली यहाँ पे भी इन केस ऑफ ऑप्टिक्स हमें पता है कि वी हैव इनपुट एंड वी हैव आउटपुट, okay. So in that case I am going to I'm going to place the object at O. I'm going to place the image, the image is going to create at, I can say, point I, ठीक है। So हमेशा we have to deal with object and image। ये बहुत चीजें दो जरूरी है जहाँ पे हम नो वी स्टार्टेड थिंकिंग कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है, राइट। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज ऑफ नाउ प्लेस किया है मैंने मीडियम में, जिसको मैं बोल सकता हूँ एज ऑफ नाउ एयर और वैक्यूम, ओके। सो मेरा ये ऑब्जेक्ट क्या है, एयर और वैक्यूम में है, ओके। और ये जो मेरा इमेज है वो मेरा किसके अंदर बन रहा है, मेरे एक स्फेरिकल सरफेस के, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दूसरा है, ओके। वो पर्टिकुलर एरिया और वो पर्टिकुलर अनदर, आई कैन से, रीजन में मेरा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी, राइट, कि यहाँ से अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका इमेज यहाँ पे कैसे बन रहा है एंड व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेशन, ओके। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर पहले जानते हैं कि ये डायग्राम कैसे बनाया है, ओके। तो सबसे पहले मुझे ये लाइन बनानी पड़ेगी विच इज नथिंग बट एक्स जेड पी एंड आई। सो दिस इज नथिंग बट माई लाइन। तो ये लाइन क्या बोलती है, दिस इज नथिंग बट अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ माई स्फीयर, ओके, स्फेरिकल सरफेस, सो विच इज नथिंग बट माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से मेरा क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर लाइन है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। देन देयर विल बी, ये उन्होंने इसे बोला है वाई पी वाई, सो दिस इज वाई। सो यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है बट यहाँ पे हम इसको बोलेंगे वाई पी एंड वाई। सो दिस इज नथिंग बट माई रेडियस ऑफ, सॉरी, स्फेरिकल सरफेस, जिसका रेडियस है ये, ओके। सो दिस इज नथिंग बट माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और जिसका रेडियस है दिस पीसी, पीसी इज नथिंग बट माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है आर, so PC is nothing but my R, okay। So consider a spherical surface YPY which is nothing but this, of radius of curvature R which is nothing but this, separating two transparent media which is nothing but one is air and another is nothing but my glass, or I can say glass, lenses are made up of glass only, so glass। so यहाँ पे उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिया है, दिस इज N1 एंड दिस इज N2, ओके। whereas N1 has to be less than N2। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, बिकॉज एयर का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, ओके। और बाकी जितने भी मीडियम है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ग्रेटर देन 1, ओके। अगर मैं और डिटेलिंग में जाऊं तो वैक्यूम का एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1,
और एयर का थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है, लाइक 1.034 समथिंग, राइट। बट जब भी हम उसको बिगर पिक्चर में देखते हैं तभी वैक्यूम एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं 1, ओके, एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। तो यहाँ पे अगर ग्लास है तो ऑब्वियसली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 1.6 होगा। सो 1.5 इज ग्रेटर देन 1, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक एरो आना चाहिए विच इज n1 इज लेस देन n2। P is the pole on XPX the principal axis। देखो इन्होंने ये जो x डैश p x जो लिया हुआ है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और यही प्रिंसिपल एक्सिस पे सारे कैलकुलेशंस हम मेजर करेंगे। जैसे लास्ट टाइम बोला था कि इन दिस x डैश पी एक्स, सो इफ p इज माई सेंटर, तो सारे जो रे स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे O से, ओके, और जो मेरा आई कैन से कैलकुलेशंस होंगे वो भी स्टार्ट होंगे आई कैन से P से, राइट। सो P के लेफ्ट हैंड साइड जो माइनस नेगेटिव एक्सिस एक्सिस जाता है उसमें उसके लिए सारे में नेगेटिव लूंगा, और जो पॉजिटिव जाता है उसके लिए मैं सारे में पॉजिटिव लूंगा। ओके, आई टेल यू हाउ टू डील विद दिस। बट जब भी आप उसको डायग्राम को बनाओगे, सो जब भी आप डायग्राम को बनाओगे ऑब्वियसली आपको सबसे पहले एक्स पी एक्स ड्रॉ करना है, देन उसके बाद स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करना है जिसका सेंटर होगा P। देन उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है O। देन ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद ऑब्वियसली आप इसको अलाउ करेंगे, इसका जो रे ऑफ इंसिडेंस है उसको आप अलाउ करोगे A पे। ओके, सो A इज नथिंग बट माई पॉइंट, वेयर एज दिस ऑब्जेक्ट का आई कैन से रे यहाँ पे एक रे फॉल हो रहा है। ओके, अनदर रे इज नथिंग बट पैरेलल टू दिस XPX ओनली। सो एक रे मेरा ऐसे जा रहा है विच इज अनडिविएटेड एंड विच इज फॉर्मिंग माई इमेज आई। ओके, बट दूसरा रे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एट ए पॉइंट वो मीट हो रहा है, एंड ड्यू टू सडन चेंज इन देयर आई कैन से मीडियम, सो यहाँ पे एयर से अचानक से वो क्या हुआ, ग्लास में एंटर किया उसने, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन हैज टू हैपन। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर मैं रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रहा हूँ तो मेरा जो रे ऑफ लाइट है उसका एक्चुअल पाथ देखो ये है, बट in case of rarer medium to denser medium it should move towards the normal। so अभी आप सोच रहे हो कि नॉर्मल क्या है सर, देखो नॉर्मल इज नथिंग बट ये सरफेस पे अगर एक मैंने लाइन निकाली, सो दैट लाइन हैज टू बी 90 डिग्री टू द सरफेस, और वो तभी पॉसिबल है जब मैं उसके सेंटर से कोई भी एक लाइन निकालू, राइट। सो दिस सी ए एन इज नथिंग बट, और आई कैन से सी ए एन इज नथिंग बट माई नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर कर्वेचर। तो ये पॉइंट से ऑब्वियसली नॉर्मल तो क्या करेगा, ये जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्रैक्शन अगर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम है, सो दिस विल मूव टुवर्ड्स, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। सो दिस विल मूव टुवर्ड्स माय नॉर्मल, राइट। तो उसका एक्चुअल पाथ ये था, बट जैसे उसने दूसरे मीडियम में एंट्री किया विच इज डेंसर देन द रेयर मीडियम, देन उसका जो मूवमेंट था आई कैन से रे ऑफ लाइट इज नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और यहाँ पे जो आई कैन से एंगल फॉर्म हुआ, सो दैट वी कॉल्ड इट एज इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्शन एंगल जिसने नॉर्मल के साथ एक एंगल क्रिएट कर दिया उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव एंगल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज नथिंग बट माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। सो यहाँ पे मुझे पॉइंट ए भी मिला, पॉइंट एन भी मिला, ओके, एंड पॉइंट सी भी मिला, राइट। सी इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्वेचर। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नथिंग बट अगर मैंने ये पर्टिकुलर ए और यहाँ पे अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया टू अलाउ टू गो फर्दर, तो एट पॉइंट आई पे मेरा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, बिकॉज दिस लाइन विल मूव अनडेविएटेड बिकॉज ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बट यहाँ पे जो एक्स आई ए जा रहा है, राइट, ये ए वाला जो एक्स डैश ए, दिस ray is getting refracted and meeting at point I। ओके, सो जहां पे ये रे और ये रे कंबाइन होगा वो एक्चुअल मेरे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मेरा इमेज होगा। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई इमेज के डिस्टेंस को हम हमेशा v से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा हम u से डिनोट करते हैं, राइट।
So this is nothing but my u distance, which is object. This is nothing but my image distance. Okay, and this is nothing but my radius of curvature. Okay, और मेरा जो incident ray है, that is nothing but moving from left hand side to right hand side, and ये ऐसा हो रहा है. So ये सारी चीजें possible है only when half of the curvature is came into the picture. Okay, अगर मेरा खाली हाफ ही कर्वेचर होता तो ऑब्वियसली, मतलब ऐसा मानो कि ये पूरा जो सरफेस है या ये जो पूरा जो मटेरियल है, दैट इज नथिंग बट इट्स लाइक दिस. इट्स द सेम मटेरियल ओनली, देयर इज नो हाफ साइड ऑफ इट. ओके, तो वो केस में यहाँ पे मेरा जो N1 है विच इज एयर, और यहाँ पे जो मेरा N2 है विच इज माई मीडियम और ग्लास, तो ऑब्वियसली N1 इज लेस देन N2. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में मेरा एंगल ऑफ, मतलब मेरा रे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट करके मेरा रे रिफ्रैक्ट हो रहा है, एंड विच इज मीटिंग एट पॉइंट आई. ओके, अंडरस्टूड. Now let's see the derivation of it, right? So as of now, this is how we have to draw this particular diagram one by one. Okay, so आप जब भी इसको draw करोगे, so we have to start from this, then curvature, okay, then this OA ray, then this AI ray, and this normal, okay, and then you have to create the angles which are required. Okay, so देखो student, यहाँ पे apart from this angle of incidence, apart from this angle of refraction, okay, there are three angles or more, right? देखो ये angles का कोई significance नहीं है, but अभी हम जो फॉर्मूलाज या हम लोग जो डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये तीन जो एंगल है विच इज अल्फा, बीटा एंड गैमा, उसका यूज हमें बहुत होने वाला है, राइट? सो अभी हम देखते हैं कि ये जो अल्फा, बीटा, गैमा है ये एग्जैक्टली है क्या. देखो अल्फा इज नथिंग बट द एंगल, जो ये आर्क, आर्क आपको पता है राइट, विच इज नथिंग बट दिस एपी, एपी इज नथिंग बट आर्क, arc is nothing but one of the small part of my spherical surface. So this arc AP divided by this R1 is nothing but my alpha. Okay, similarly मेरा ये जो बीटा एंगल है वो भी मैं बोल सकता हूँ कि this arc AP divided by my I can say distance which is R2. So ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, right? So therefore I have a gamma as well, right? So gamma is nothing but arc AP divided by my angle this sorry my this I can say distance is nothing but V. Okay, so यहाँ पे सब जगह मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा, बीटा, गैमा इन टर्म्स ऑफ आर्क AB मिल रहा है. ओके, सो आर्क AP के करस्पॉन्डिंग अल्फा, बीटा एंड गैमा आई विल नोट इट डाउन. ओके, सो यही पर्टिकुलर इक्वेशन यूज करके आई नीड टू प्रोसीड. तो कैसे प्रोसीड करना है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, ठीक है. नाउ इन दिस जस्ट लुक एट दिस डायग्राम जो हमने जस्ट प्रीवियसली देखा था. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जैसे हमने बोला था आपको कि यस, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ओके, और ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, इन टर्म्स ऑफ साइन will be equal to the another medium refractive index into वो medium में जो angle of refraction create हो रहा है, right? So this we called it as the Snell's law. Okay, therefore n1 sin I will be equal to n2 sin R. Okay, this is according to the Snell's law. अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि अल्फा, बीटा एंड गैमा ये मैंने एक एंगल्स मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से लिए हैं. ओके, देयर इज नो अदर सिग्निफिकेंस ऑफ इट. जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वैसे अल्फा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स आई हैव टेकन दैट. सो बाय लुकिंग एट द ज्योमेट्री, ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आई वाला एंगल है, आई इज नथिंग बट माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, विच इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस अल्फा एंड बीटा, राइट? अब ये एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, ये आपको मैथ्स में शायद से आपने पढ़ा होगा, राइट? सो अगर आई मेरा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा है तो मैं उसको ये फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, विच इज आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. ओके, बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स का जो समेशन होता है वो अगर 180 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है विच इज नथिंग बट एंगल
लेट्स से ओ ए सी, तो ये जो ओ ए सी एंगल है विच इज अ थर्ड एंगल ऑफ दिस अल्फा बीटा, तो ये एंगल को मुझे फाइंड आउट करने का है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू डू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, तब मुझे जाके क्या मिलेगा, ये जो ओ ए सी है वो एंगल मिलेगा। एट द सेम टाइम इफ आई वांट टू कैंसल, इफ आई वांट टू चेक कि सॉरी इफ आई वांट टू फाइंड आउट द बेस्ड ऑन दिस नॉर्मल, सो मेरे पास एन ए सी, ये जो नॉर्मल है वो एट पॉइंट ए क्या हो रही है, ये ओ ए इसको डाइसेक्ट कर रहा है, तो जैसे ही ये पॉइंट पे उसको डाइसेक्ट किया तो उसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो कन्वर्ट हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस में, बट जो पार्ट जो बचा हुआ है ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस आई, तो वो केस में क्या हुआ, अगेन मुझे मिला 180 डिग्री माइनस आई, एंड यहाँ पे मुझे ये ट्रायंगल में मिला 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। सो इसका मतलब यही है कि अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू आई। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल प्रिंसिपल और थियरम। ओके, so I is the exterior angle of alpha and beta, then therefore I will be equal to alpha plus beta and R will be equal to beta minus gamma। अभी आप सोच रहे होगे सर R और बीटा और gamma कैसे किया उन्होंने, देखो उन्होंने क्या किया, सिंपली इसको रीअरेंज करके डायरेक्टली बताया है। तो आपको क्या करना है, दिस आई कैन से बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ R एंड gamma, तो बीटा विल बी इक्वल टू R प्लस गैमा। सो मैंने क्या किया, जस्ट आर को वही रखा और गैमा को वो साइड लेके गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा माइनस गैमा हो गया, राइट। सो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू बीटा माइनस गैमा। अभी क्या जरूरत थी मुझे कि इनको आई एंड आर को इन टर्म्स ऑफ बीटा और गैमा लिखने की, बिकॉज मेरे जो स्नेल्स लॉ है उसमें मुझे वैल्यू पुट करना है आई एंड आर का। सो दैट इज द रीजन आई brought this alpha beta gamma in terms of I and R. Okay, so for paraxial rays which is nothing but OA, ठीक है, all these angles are small, okay, and therefore PA can be considered as a arc and alpha beta gamma for as per this। so इसका मतलब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो I and R, ये जो I and R है वो उन्होंने ऐसे कंसिडर किया है कि बहुत छोटे हैं, ओके, बिकॉज वो ऑलमोस्ट क्या उन्होंने देखो पैरेक्शियल लिखा है, मतलब क्या कि ये जो ओ ए है वो ऑलमोस्ट ये ओपी से पैरेलल ही है, तो अगर उसमें बहुत छोटा एंगल है सो दैट एंगल इज नथिंग बट इक्वल टू माय एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली, राइट। तो वो केस में मैं कंसिडर कर सकता हूँ साइन आई विल बी इक्वल टू आई ओनली एंड साइन आर विल बी इक्वल टू आर ओनली, राइट। सो वो केस में n1 ये साइन आई को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आई के साथ, n2 ये साइन आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आर के साथ, तो एन आई इंटू आई विल बी इक्वल टू n2 इंटू आर। सो यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऐसे क्रिएट होगा, राइट। बट यू कैन सी हियर कि अभी मुझे अल्फा, अगर मुझे ये अल्फा का वैल्यू निकालना है, राइट, तो आप ये सेक्टर लॉ को भी यूज कर सकते हो, जैसे ये आर्क है, सो देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय दिस सेक्टर एपी कैन बी गिवन एज आर्क एपी डिवाइडेड बाय पीओ। पीओ यहाँ पे क्या है मेरा R1 और मैं उसको बोल सकता हूँ माइनस यू, सो माई आर्क एपी डिवाइड बाय माइनस यू। सिमिलरली ये जो बीटा है, राइट, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्क एपी डिवाइडेड बाय पीसी, तो यहाँ पे मेरा क्या है, आर्क एपी डिवाइडेड बाय पीसी इज नथिंग बट माई आर। तो यहाँ पे आर उन्होंने माइनस दिया है, वो उन्होंने गलती से दिया है, सो प्लीज मेक इट एज अ प्लस आर, ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन लॉ सारे कैलकुलेशंस पी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी होंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वो सारे नेगेटिव होंगे, और जितने भी कैलकुलेशन राइट हैंड साइड पे होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। सो मेक श्योर कि आप ये आर को पॉजिटिव कंसिडर करें। देखो यहाँ पे भी उन्होंने कहीं पे नेगेटिव आर नहीं लिखा हुआ है, राइट, बट नेगेटिव यू लिखा हुआ है, राइट। सो देयरफॉर बीटा विल बी इक्वल टू अगेन आर्क एपी डिवाइडेड बाय पीसी, ओके, and gamma again will be equal to arc AP divided by this particular distance which is PI, which is we call it as a V, okay, image distance, और ये मेरा है object distance U, and R is nothing but radius of curvature। ये जो spherical है उसका ये R क्या है, radius of curvature है, right। तो अभी मुझे देखो क्या मिला, अल्फा मिला, बीटा मिला एंड गैमा मिला, बट ये अल्फा बीटा गैमा इन टर्म्स ऑफ क्या मिला, आर्क एपी मिला, राइट। तो अगर मैं ये जो इक्वेशन है जिसको मैंने कंसिडर किया है कि माई साइन आई विल बी इक्वल टू आई,
तो in that case, what I will do, this Ni into I will be equal to N2 into R. So just I have inserted this value, which is alpha plus beta in terms of I and beta minus gamma in terms of R. तो अगर मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो, N1 in bracket alpha plus beta will be equal to N2 in bracket beta minus gamma. अगर मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो मुझे ये मिला N1 minus N2 कॉमन बीटा, ओके, विल बी इक्वल टू N2 minus N2 gamma प्लस N1 अल्फा. ओके, तो ये सारी चीजें मुझे मिली. देन मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा गैमा का ये जो मैंने वैल्यूज निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ आर्क, तो मैं वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके दिस गोना बी माय फाइनल इक्वेशन. ओके, so whereas n2 minus n1 divided by radius of curvature will be equal to n2 divided by v minus n1 divided by u. So this total we called it as a equation of my refraction at single spherical surface, right? ये जो equation है इसको आपको याद रखना है, right? So जब भी आप single spherical surface पे आई कैन से रिफ्रैक्शन का आउटपुट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तब आपको ऑलवेज द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विच इज n2 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज पॉजिटिव विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय जिसके अंदर वो इमेज बनी है डिवाइड बाय वो इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. Okay, so this is the equation of my refraction at single spherical surface. Okay, everybody understood? Just give me yes or no in the chat box. Have you understood how this refraction at single spherical surface happened? Because यही refraction at single spherical surface को हम use करने वाले हैं to find out for complete lens. बिकॉज अभी तक हमने जो देखा है वो आधे लेंस के लिए देखा है. अगर मैंने इसको रिमेनिंग लेंस जो मैंने पार्ट अगर उसको कंप्लीट किया, देन व्हाट विल बी माय फाइनल आउटकम, ये मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स गो ऑन दैट. देखो यहाँ पे ये कंप्लीट मेरा आई कैन से स्फेरिकल सरफेस आ गए. सो एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गया, दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये हो गया. तो उसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से ए एंड बी. ओके, सो ए एंड बी पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर रे अंदर जाके अगेन वो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका. ओके, सो इन द प्रीवियस केस इट वाज ओनली अ सिंगल रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस. बट जैसे ही मेरा पूरा लेंस पिक्चर में आ जाता है, तो लेंस में क्या होता है, अगेन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम इट विल एंटर इनटू द डेंसर मीडियम. अगेन फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम अगेन वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर टू रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ टू रिफ्रैक्शन, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट? तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है नाम, जो दूसरा एक इक्वेशंस दिखाता है, लाइक लेंस मेकर्स इक्वेशन. अभी आप सोच रहे होगे कि लेंस मेकर कोई साइंटिस्ट है. नो, इट इज नॉट ही इज नॉट अ साइंटिस्ट. लेंस मेकर्स ये बोला है कि बहुत सारे लोग आई कैन से स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं, राइट? स्पेक्टेकल्स मतलब आप चश्मा यूज करते हो, राइट, बिकॉज ऑफ सम डिसऑर्डर. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपको दूर का या पास का नहीं दिख रहा है, राइट, इसका मतलब क्या, यू नीड टू यूज अ ग्लास जिसको हम चश्मा बोलते हैं, and because of that particular glass you are able to see clearly the object, right? So ये particular lens को find out करने के लिए, ये particular lens को समझने के लिए कि कितना ये मेरे लेफ्ट आई का नंबर कितना है, राइट हैंड साइड का आई नंबर कितना है, तो वो पर्टिकुलर सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए ये लेंस मेकर्स का जो इक्वेशन है वो यूज होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लेंस मेकर्स इक्वेशन. ओके, सो ये लेंस मेकर इक्वेशन इसलिए बोला है बिकॉज वाइल डेवलपमेंट और वाइल क्रिएटिंग और वाइल बिल्डिंग दो चश्मा, राइट, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. सो वो कैलकुलेशंस हमेशा ये लेंस मेकर्स इक्वेशन से होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लेंस मेकर, चश्मे बनाने वाला इक्वेशन.
ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव हाफ, ओके, जिसका हमने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन, सॉरी एक इक्वेशन निकाल दिया है। एंड नाउ देयर इज अ वन मोर हाफ स्फेरिकल कर्वेचर, जिसको मैंने दोनों को मिला के एक कंप्लीट लेंस बना दी, ओके। और इसको हम बोलेंगे थिन लेंस, ओके। थिन लेंस का मतलब एक थिन लेंस होती है और एक वाइड लेंस होती है, राइट। सो हमेशा ये जो इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर अ थिन लेंस, ओके। सो लेट्स सी कि थिन लेंस क्या होता है। So, so the relation between refractive index n, focal length f, and radii of curvature r1 and r2 for a thin lens. Okay, तो यहाँ पे लेंस मेकर इक्वेशन क्या बताता है? लेंस मेकर इक्वेशन ये बताता है, लेंस मेकर इक्वेशन actually it is giving the relationship between the refractive index, focal length and radius of curvature. अब ये आप ही सोच रहे होंगे कि सर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों है? देखो, आधे ये पर्टिकुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का है, स्फेरिकल आई कैन से या ऑब्जेक्ट का है, एंड अनदर वन इज नथिंग बट दिस स्फेरिकल कर्वेचर का है, ओके। सो वी हैव हाफ दिस एंड वी हैव हाफ दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाफ एंड हाफ ओनली, मुझे क्या मिल रहा है? लेंस मेकर, सॉरी, मेरा कंप्लीट लेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कि हाउ वी आर गोइंग टू proceed further. Again, in order to understand or order to derive the equation, first we have to understand the diagram. तो यहाँ पे diagram देखो क्या है, सबसे मेन है C2 is nothing but the center of curvature of this spherical surface B. C1 is nothing but center of curvature of this spherical surface A. Okay, so इसका ये है और ये B वाले का C2 है. Then O is nothing but the point at which my object is there. There are two images are creating. Why two images? I will tell you. So one is I1, another one is I. Okay. Therefore, there are two image distance also created, B and B1. Okay. So यहाँ पे दो point है A and B. At A point, my object से क्या हो रहा है? मैं एंगल ऑफ सॉरी मेरा इंसिडेंट रे में फॉल कर रहा हूँ एट पॉइंट ए, एंड बी पे मेरा क्या हो रहा है? इंसिडेंट ऐसा पॉइंट है जहां से वो रे बाहर निकल रहा है, ओके, आफ्टर ट्रेवलिंग इनसाइड, okay. So object is having a distance which is u at this point O, okay. So अभी हमेशा हम चेक करेंगे कि कौन से कर्वेचर के हिसाब से हमें ये डिस्टेंस लेने हैं, दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लिखा है, ओके। सो हमें हमारे हिसाब से अभी क्या करना है, सारी चीजें कैलकुलेट करनी, ओके। सो लेट्स सी इन फर्दर। सो अभी तक हमारे पास एक इक्वेशन है विच इज नथिंग बट दिस प्रीवियस इक्वेशन which is because of the half curvature. So यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? n2 minus n1 divided by r will be equal to n2 minus n2 divided by v minus n1 divided by u. इसका मतलब जो पर्टिकुलर आई कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे मेरा इमेज है, उसका इमेज का डिस्टेंस, एंड ये जो मेरा n1 है विच इज नथिंग बट पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। नाउ सिमिलरली सेम इक्वेशन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस अगेन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस। तो यही इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके दोनों केस में फाइंड आउट करूंगा, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन एब्सेंस ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये बी होता ही नहीं तो उसका मैंने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस मैंने निकाल के रखा है। सो दैट इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो n2 मेरा है n विच इज नथिंग बट दिस ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 मेरा क्या है? एयर। एयर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमेशा 1, ओके। एंड यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एज ऑफ नाउ मैं r1 नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देयर हैज टू बी अ r1। तो यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए? r1 होना चाहिए, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट माई r2, ओके। सो ये मेरा है r1 और ये मेरा है r2, ओके। सो ये एक मेरा है R1, दूसरा है मेरा R2। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है N2 will be equal to N and N1 will be equal to 1. Why? Because it is a air. And second, इसका जो R1 है, which is nothing but let's say as of now it's a R1. Therefore, image distance will be taken it as a U only and V will be taken it as a V1 only because this is for the first, very first, okay, very first, जहाँ पे मैं खाली absence of another, I can say I am taking
आई एम नॉट टेकिंग दिस अनदर बी स्फेरिकल सरफेस एज ऑफ नाउ इन पिक्चर। तो मुझे खाली एक ही साइड से मेरा जो आउटपुट है वो मुझे कितना मिल रहा है वो मुझे ये पर्टिकुलर इक्वेशन से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आप जस्ट इमेजिन करो कि मेरा जो पहले था विच इज n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r विल बी इक्वल टू n2 माइनस डिवाइडेड बाय v माइनस n1 डिवाइडेड बाय u। तो यही चीजों को मैंने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। सो n2 विल बी n, सो n यहाँ पे आ गया, इसका 1 आ गया, r विल बी रिप्लेस बाय r1, u will be replaced by u, and v will be replaced by as of now v1. So this is nothing but the equation for only one spherical surface. But जैसे ही in presence of second refractive surface आ गया तो अभी क्या करें, तो जैसे ही second आ गया तो अभी मेरा जो I1 था, okay, so this I is, I can say, image of this spherical surface A, and for this spherical surface A my object was O. बट जब ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया विच इज बी, सो फॉर दिस बी मेरा जो इमेज होगा ऑफ फर्स्ट वन दैट विल बी एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस बी। ओके, समझा आपको? पहले जो स्फेरिकल सरफेस था उसके लिए ओ मेरा ऑब्जेक्ट था और आई वन मेरा इमेज था। बट अभी क्या होगा कि जैसे ही ये इंटरनल ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जो इमेज बन रहा है दैट इज नाउ बिकम, तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ से रे कैसे आएगा, नो, ये एक्चुअल में यहाँ पे बना हुआ है, ये इमेज यहाँ पे बनी है, राइट? और ये इमेज का जो रे आएगा नाउ दैट इज बिकमिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ माई इमेज विच इज फाइनल इमेज विच इज क्रिएटिंग एट आई। ओके, सो यहाँ पे मेरा जो फाइनल इमेज बनेगा दैट विल बिकम माई फाइनल इमेज, एंड उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा रिस्पॉन्सिबल दैट इज नथिंग बट माई ऑब्जेक्ट I1। ओके, सो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो I1 है एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा कि नहीं, अगर वो स्फेरिकल सरफेस एक है तो यस 110% वो एग्जिस्ट करता है, बट अगर वो स्फेरिकल सरफेस दोनों अगर जैसे पिक्चर में आते हैं तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया है, देखो ये पर्टिकुलर लाइन को डॉटेड लिखा हुआ है। द मोमेंट इट इज अ डॉटेड रे, इसका मतलब जहां पे वो आ रही है दैट वी कॉल्ड एज अ वर्चुअल रे। ओके, और उससे जो मेरा एंगल क्रिएट हो रहा है, ओके, दैट वी कॉल्ड इट एज अ वर्चुअल एंगल और वर्चुअल इमेज, सॉरी। ओके, so that's why this dotted line is nothing but this is a virtual line which is actually coming from this particular distance. Okay, so this is nothing but my virtual line. So अभी आपको इतना बहुत क्लियर, मतलब इतना क्लियर हो गया होगा कि this I1 is actually the object for this second spherical. Okay, और ये I1 से मेरा क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होके मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, इमेज फॉर्म हो रही है। सो अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से दिस इज ओनली वन, आई कैन से थिन लेंस, तो एक थिन लेंस से मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रहा है क्रिएट और मेरा यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो एक्चुअल में देयर आर टू इमेजेस आर क्रिएटेड, फर्स्ट इज वर्चुअल इमेज and another one is real image. Okay, so this can be come for JEE question. In case of thin lenses, how many images are getting created? If it is only one lens, then it will create only one virtual image and one real image. If there are two lenses, अगर मैंने दो lenses ऐसे यहाँ पे create कर दिए तो वहाँ पे क्या होगा, it will create two virtual object and one real image. So हमेशा real image एक ही बनेगी which is coming out of all the lenses. ओके, बट जितने सारे नंबर ऑफ थिन प्रिज्म होंगे उतने सारे क्या होंगे, मेरे वर्चुअल इमेजेस बनेंगे। तो वो पर्टिकुलर नेक्स्ट थिन लेंस के लिए इसका जो आई होगा दैट विल बी इनपुट फॉर, और दैट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट लेंस। ओके, समझ में आया आपको? एंड दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स। सो दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, एंड दिस वी कॉल्ड इट एज अ रियल, आई कैन से virtual object or virtual image. Okay, and this is the actual output of my I can say the refraction through a complete lens. Okay, अभी इसको लेंस मेकर इक्वेशन क्यों बोलते हैं वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो अभी मुझे मिला कि I1 act as a virtual object for second surface radius which is having R2। तो अभी ये मेरा जो यहाँ पे R2 है उसके लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए मेरा जो u होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, दैट विल नाउ बिकम v1। ओके, एंड देखो यहाँ पे उन्होंने लिया हुआ u विल बिकम v1,
Okay, therefore the real image of object O formed due to the lens is nothing but V. So एक्चुअल मेरा जो फाइनल इमेज डिस्टेंस होगा वो अभी चेंज होके क्या हो गया, V हो गया। इसके पहले देखो, इसके पहले जो हमने सिंगल सरफेस देखा था उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये था, इमेज डिस्टेंस V1 था, बट अभी इसमें चेंज होके क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 हो गया एंड इमेज डिस्टेंस V हो गया। ओके, बिकॉज सेकंड के लिए दिस इज द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड आई इज द इमेज। ओके, सो सेम इक्वेशन मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया एंड जस्ट उसमें मैंने जो थे वो वैल्यूज सारे डाल दी। ओके, अभी क्या होगा देखो, ये जो एंगल ऑफ सॉरी ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो एक्चुअल में कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है inside the refracting I can say surface, not surface, medium। ओके, सो यहाँ पे अंदर मतलब ग्लास में वो क्रिएट हो रहा है और फिर वो रेयर मीडियम में एंट्री कर रहा है। तो जब भी ऐसे होगा तभी यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, N2। ओके, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, N1। तो अभी मेरा जो इक्वेशन होगा वो थोड़ा उल्टा होगा। नाउ हियर इन दिस केस N2 is nothing but my actually 1, okay, and N1 is nothing but my actually N। तो यहाँ पे मेरा सॉरी यहाँ पे मेरा जो N1 होगा और यहाँ पे मेरा N2 होगा, बट यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या है, नॉर्मली N, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यहाँ पे N2 का मतलब क्या होगा, 1 विच इज एयर। तो देयरफॉर ये जैसे N1 माइनस N2 है तो यहाँ पे उल्टा होके 1 माइनस N2 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस सेकेंड बी सरफेस इज R2, पहले के केस में R1 था। देयरफॉर इसको मैंने जस्ट रीअरेंज किया और नीचे मैंने माइनस R2 लेके आया, तो n माइनस वन, तो पहले 1 माइनस n था, तो n माइनस वन डिवाइड बाई माइनस R2 विल बी इक्वल टू जस्ट 1 अपॉन V1। नाउ V1 विल बिकम माई ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जो फाइनल इमेज था उसका डिस्टेंस क्या है, V, सो यहाँ पे मैंने V डाल दिया एंड N2 यहाँ पे N1 विल बिकम N डिवाइडेड बाई V1। V1 क्यों रखा, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो में है मेरा V1, सो यहाँ पे मैंने V1 रखा। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये 9.5 एंड 9.6 को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ओके, और जैसे मैं इसको ऐड करता हूं, ओके, जैसे मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, n माइनस वन, ओके, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और बाहर क्या मिला मुझे, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ओके, सो दिस इक्वेशन आई विल गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग द प्रीवियस वन। जैसे मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल गया, जिसमें n1 माइनस n1 माइनस n माइनस वन इज द कॉमन। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिया। कंडीशन का मतलब क्या, अगर u मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो मेरा इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, मेरे फोकल डिस्टेंस में बनेगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो अगर मेरा u इनफाइनाइट पे है तो मेरा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसके फोकल डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, सो एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होती है, जैसे ही मैं किसी चीज को अगर बर्न करना चाहूंगा तो जो रेज आ रहे हैं वो रेज आते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब फ्रॉम सन, तो वो रेज इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, बट जो सारे रेज एक ही पॉइंट पे आई कैन से मर्ज होते हैं और कन्वर्ज होते हैं, वो पॉइंट होता है एक्चुअल में फोकस, और आई कैन से फोकल पॉइंट। दैट्स वाई उन्होंने बोला है कि अगर इनफाइनाइट से रेज आ रहे हैं तो आपको हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल ऑलवेज क्रिएटेड एट फोकल पॉइंट, देयरफॉर v will be equal to f। So therefore if I'll put this value over here, let's say v equal to infinite, so 1 upon infinite is 0, where that will be equal to, v will be equal to f। तो 1 upon f will be equal to n minus 1 in bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2, and this is the equation, okay, we usually use for making the lenses। So for preparing the spectacles it is necessary to grind the glasses for having the desired radii of curvature। देखो इसके लिए ये particular radius of curvature हम लोग use करते हैं। okay, above equation can be used, okay, to calculate the radius of curvature of the thin lenses, hence it is called as a lens makers equation। okay, समझा आपको, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर इक्वेशन बोलते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर मेकिंग द लेंसेस। और यहाँ पे मुझे फोकल रेडियस देखो, बिकॉज जब भी आप चश्मा लगाते हो तो आपकी जो आई होती है, ओके, आपकी जो आंखें होती है, वहां से वो स्पेक्टेकल्स के बीच का डिस्टेंस एक्चुअल में ये एफ होना चाहिए, ओके, विच इज नथिंग बट ये फोकल लेंथ होना चाहिए।
अगर वो फोकल लेंथ नहीं होगा तो आपको सारी कुछ भी चीज आपको क्लियर दिखेगी। ओके, दैट्स व्हाई दिस फोकल लेंथ हैज टू बी लाइक दिस। तो अगर डिस्टेंस मतलब अगर मैं दूर का भी देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट, बट उसका जो इमेज फॉर्म होना चाहिए वो आपके एग्जैक्टली आपके आंख के पास होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऐसे हम डिजाइन करते हैं ताकि R1 एंड R2 को चेंज करके आई कैन मैनेज दिस फोकल लेंथ। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि सिंगल कर्व्ड सरफेस पे क्या आउटपुट मिला, देन उसके बाद हमने देखा कि कर्व्ड सरफेस पे अगर मैं यूज कर रहा हूँ, सॉरी, अगर मैंने कंप्लीट लेंस यूज किया तो कंप्लीट लेंस पे मुझे क्या इक्वेशन मिल रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेंस मेकर्स। ओके, याद रखना, सो दिस इज द लेंस मेकर्स इक्वेशन। ओके, नाउ अ स्मॉल टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द डिस्पर्शन, राइट, हम लोग उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में, बट खाली इतना बोल रहा हूँ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर यू कि आपके पास अगर प्रिज्म नहीं होगा घर पे, राइट, तो स्टिल यू हैव योर स्केल। ओके, स्केल का जो एंड पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो वर्क लाइक अ प्रिज्म ओनली। तो जस्ट देखना वेन एवर यू आर नो आपके घर बैठे आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्केल को थोड़ा सा आप लाइट के तरफ देखोगे तो यू विल सी सम आई कैन से कलर्स इनटू इट, राइट, बट एक्चुअल में बाहर क्या मिल रहा है, मुझे खाली व्हाइट लाइट मिल रहा है, बट स्टिल आई एम एबल टू सी द कलर्स इन द स्केल। सो ऐसा क्यों होता है, right, why there is a rainbow coming, okay, in picture? So always all these things are related to the dispersion of light. Dispersion मतलब scattered होना, right? Dispersion का मतलब ये भी होता है कि मेरे पास अगर कुछ qualities है और जैसे मुझे कुछ मौका मिला तो वो सारी क्वालिटीज में बाहर निकाल दूंगा, दैट वी कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन। वैसे ही लाइट, व्हाइट लाइट के पास क्या होते हैं, तेरा टोटल 7 कलर्स, ओके, बट जब ये टोटल 7 कलर्स एक साथ होते हैं तो उसको वो मुझे दिखता है व्हाइट। ओके, बट जैसे ही मैं उसको एक प्रिज्म के थ्रू पास करता हूँ तो हर एक लाइट का अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका मतलब हर एक लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हेंस वो अपना पाथ अलग अलग क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो ज्यादा डेविएट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो कम डेविएट होता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस डेविएशन मेरा जो लाइट है, मेरा जो व्हाइट लाइट है उसमें जो 7 रंग है, वेबग्योर हम लोग उसको बोलते हैं, राइट। सो ये जो 7 कलर है वो अलग अलग आई कैन से वेलोसिटी से ये प्रिज्म में ट्रैवल करते हैं, और जैसे उसको दूसरा सरफेस मिला तो वैसे ही वो सारे कलर्स क्या होते हैं और ब्राइट होके बाहर आते हैं, right? And this is how the dispersion of light take place, whereas the white light is get converted into its constituent 7 colors after passing through a prism. We called it as a dispersion of light. Okay, ये लाइट का फिनोमिनॉन हमें देखने मिलता है। The only reason is every frequency of this color light having different refractive index, okay, when it is flowing in a different medium, okay। अगर मैंने एयर से दूसरा अगर कोई मीडियम जैसे प्रिज्म का ग्लास मीडियम है अगर मैंने लिया, राइट, तो उसमें हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ये आपको पता है, राइट। सो हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, जब भी वो प्रिज्म से पास होगी तो हर एक वेलोसिटी अलग अलग तरीके से आती है, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली हर एक अपना अपना पाथ क्या होता है, सिलेक्ट कर लेता है। सो यहाँ पे लिखा है देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल आल्सो डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस वॉयलेट इज हाईएस्ट, whereas for red it's lowest, okay। The refractive index of light is different for different colors, okay। so हमेशा याद रखो कि डिस्पर्शन का मतलब कि स्कैटर्ड होना एक व्हाइट लाइट का इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, बट द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कलर्स, ओके। एंड इसका भी मेन है कि बिकॉज हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग है, तो जब भी वो एक मटेरियल से पास होगा तो हर एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एंगल ऑफ डेविएशन और डिस्पर्शन क्रिएट होगा और उसके हिसाब से मुझे आउटपुट मिलेगा। दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है। सेम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेनबो,
रेम्बो में भी ऐसा ही होता है कि जब भी एक व्हाइट लाइट नॉर्मल एयर मीडियम टू मेरा जो स्फेरिकल ड्रॉप होता है उसमें जाती है तो ऑब्वियसली इट विल गेट डिस्पर्स्ड, एंड बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, मुझे आउटपुट में वो एक व्हाइट लाइट का 7 कलर में कन्वर्ट होके मुझे बाहर मिलता है, राइट। एंड हर एक का अलग एक एंगल होता है, तो एंगल के हिसाब से मुझे मिलता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो वी विल सी द डिटेल्स in next lecture. Okay, so white light, then red light, violet, this is called as angular dispersion. इतना उसमें dispersion हुआ है. This is a transparent medium and this is a vacuum, जैसे मैंने आपको बोला. So this can be a prism, this can be a raindrop, it can be anything. Okay, for an absolute incident ray, the angles of refraction are different for each color, hence they separate or disperse as they travel along the different direction. This phenomenon is called as the angular dispersion. Okay, so angular dispersion का मतलब यही होता है कि जैसे ही वो पर्टिकुलर इंसिडेंट रे, ओके, जब ये एक मीडियम में जाता है तो डिफरेंट कलर विल हैव इट्स डिफरेंट, आई कैन से, फ्रीक्वेंसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या होते हैं, सेपरेट या डिस्पर्स हो जाते हैं एंड दे ट्रेवल अलोंग अ डिफरेंट डायरेक्शन. दिस वी कॉल्ड इट एज अ डिस्पर्शन. ओके, थैंक यू.